Good afternoon, dear kids. Today we'll be taking our new topic, that is photosynthesis. My dear kids, what is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which living plant cells containing chlorophyll produces food substance, that is glucose and starch, from carbon dioxide and water by using light energy. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट का वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाता है. खाना मतलब ग्लूकोज एंड स्टार्च. इट मेक्स व्हाट? ग्लूकोज एंड स्टार्च. ठीक है, इस खाना बनाने के लिए उसको चाहिए क्या क्या? तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए बहुत सारा, देन वाटर चाहिए, ओके, एंड क्लोरोफिल, द मेन इम्पॉर्टेंट कंटेंट. क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट कौन करेगा? सनलाइट को एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? सो क्लोरोफिल. सो दिस, विद द हेल्प ऑफ दीज फोर थिंग्स, प्लांट मेक्स ग्लूकोज एंड स्टार्च. ठीक है, इन दिस ओवरऑल प्रोसेस देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, and therefore we say that plants give us oxygen and take in carbon dioxide. So they are very helpful to us. So did you got what is photosynthesis? Okay, next, importance of photosynthesis. What are the importance of photosynthesis? I have written 2 points: food for all, oxygen for all. How food for all? As I said, photosynthesis is the process by which plant prepares its own food. But वही plant अगर आप खा रहे हो तो उसी तरीके से आपके अंदर भी इनडायरेक्टली, एनिमल्स के अंदर भी इनडायरेक्टली वो फूड जा रहा है. सो इट्स फूड फॉर ऑल. सो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? दैट इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल. सेकेंड इज ऑक्सीजन फॉर ऑल. Oxygen for all. As I said, that photosynthesis is such a biological process in which plant takes in carbon dioxide and during that process releases the most important thing, that is oxygen. And we human being, animals, we take in oxygen. So you can make it out that they give out such an important factor to us. ठीक है, so they give out oxygen for all. So two important significance of photosynthesis to be performed, because food for all, plants gives us food for all and oxygen for all. Next topic is chlorophyll. Now my dear kids, what do you understand by chlorophyll? As I have written, chlorophyll is a green color pigment. It is found in plants. It is present which part of the plant? It is present in the chloroplast organelle of the plant cell. Clear? So chlorophyll is green in color. But how do we know that it is green in color and why it is green in color? See, chlorophyll is that pigment, that substance that absorbs the light energy. ठीक है, तो लाइट एनर्जी में आपके बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स होते हैं, बहुत सारे आपके विबग्योर होता है. विबग्योर होना मतलब आपका वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे बहुत सारी लाइट्स होती हैं. अब इसमें क्लोरोफिल में एक है कि वो बहुत सारा ब्लू एब्जॉर्ब करता है लाइट का और रेड एब्जॉर्ब करता है, एंड ग्रीन इट रिफ्लेक्ट्स बैक. ग्रीन कलर की लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता. ग्रीन कलर का स्पेक्ट्रम में जो कंटेंट है वो फोटॉन्स क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता, एंड दैट्स द रीजन इट इज ग्रीन इन कलर. सो इफ यू गेट अ गिव रीजन दैट व्हाई क्लोरोफिल आर ग्रीन इन कलर, सो यू विल राइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स blue and red light from the spectrum and giving back or reflecting back the green light, because of which chlorophyll appears green in color. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. क्या इतना सारा लाइट एब्जॉर्ब करना उनके लिए कहीं नुकसानदायक तो नहीं है? हाँ है. अगर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लाइट में आप प्लांट को रख रहे हो, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सनलाइट में आप रख रहे हो, तो क्लोरोफिल इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट, इट मे डिस्ट्रॉय. ठीक है, ओके. देन वी विल जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. एज वी सेड कि okay, I'll tell you one more point about chlorophyll. Chlorophyll itself is very complex substance. So it is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, magnesium. So it is very complex. ठीक है, तो क्लोरोफिल में आपको ये सब पाया जाता है. ओके, एंड अदर आपको ये भी बता दूं कि क्लोरोफिल के करीबन 9 टाइप्स हैं. देर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, बट वी विल बी डूइंग ओनली क्लोरोफिल
ए एंड क्लोरोफिल बी। वो भी आपको क्लोरोफिल ए और बी के बारे में एक्सटर्नल नॉलेज है, आपके बुक्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए एंड बी विल बी आवर पार्ट ऑफ स्टडी। ओके, नेक्स्ट वी विल जंप ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है, क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है, तो क्लोरोफिल होता है प्लांट के सेल ऑर्गेनल में। कौन से ऑर्गेनल में, तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नाउ क्लोरोप्लास्ट इफ यू कैन सी दे आर द ओवल बॉडीज, ठीक है, एंड दे आर डबल मेम्ब्रेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी कवरिंग में डबल मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हो। So this is double membrane. Now what does they consist of? They consist of, can you see, I'll just zoom this so that you can see what are these green color. These are called as thylakoids. So what are thylakoids? जहाँ पे क्लोरोफिल का स्टोरेज है उनके स्टेक्स को बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। उनके स्टेक को, उनके जहाँ पे क्लोरोफिल आपका कंटेंट मौजूद है उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। और इस पूरे स्टैक को बोलते हैं, लेयर्स को बोलते हैं ग्रैना। एक एक को बोलोगे थाइलाकॉइड, पूरे लेयर्स को बोलोगे ग्रैना या ग्रैनम, या आप बोल सकते हो ग्रैनम। ठीक है, अब ये एक ग्रैना और दूसरा ग्रैना किसी से कनेक्टेड है, आप देख रहे हो ये कनेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट। क्लियर। अब ये पूरा स्ट्रक्चर इधर ग्राउंड लिक्विड है, यहाँ पे कुछ लिक्विड आप देख रहे हो, ये डॉट्स, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। सो यू गॉट व्हाट यू मीन बाय ग्रैनम और ग्रैना, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड्स एंड फ्रेट। तो आप अगर फिगर बना रहे हो तो उसमें ये चारों चीज़ें आनी ही चाहिए। क्लियर। और क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो उस दिन जब हम लोग ने लीफ का एक स्ट्रक्चर लिया था, वर्टिकल सेक्शन, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपर एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल सेल्स बनाए थे और स्पॉन्जी सेल्स बनाए थे, फिर यहाँ पे एरेटेड स्पेस था जहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस था। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं और यहाँ पे स्पॉन्जी सेल्स हैं। मेसोफिल पेलिसैड बोल सकते हो, मेसोफिल स्पॉन्जी बोल सकते हो। मेसोफिल के ही दो प्रकार हैं, पेलिसैड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहीं पे मिलेगा। और मेसोफिल आपको कहाँ पे मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपर पार्ट में। ठीक है, तो आपको आपके रीजन में जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेसोफिल्स होंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट आपके लोअर लेयर में, लोअर पार्ट ऑफ द लीफ में होता है, और जहाँ पे आपका ये स्टोमाटा होता है उसके गार्ड सेल्स में आपको बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा न्यूमेरिकली जाएं तो अराउंड 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ स्ट्रक्चर के मिलीमीटर स्क्वायर आप समझते हैं कितना होता है। इतने छोटे से एरिया में आपको 5 लाख क्लोरोप्लास्ट्स मिलते हैं। क्लियर। ओके, देन आई जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अभी आपने ये समझ लिया कि क्लोरोफिल कंटेंट है, तो क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वाटर तो होता ही है, रूट्स के थ्रू, वीन्स के थ्रू वाटर जाता है। दूसरा एक है कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा प्लांट के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है स्टोमाटा के थ्रू। तो स्टोमाटा के थ्रू जाने के लिए हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। अब ये बात भी क्लियर है कि स्टोमाटा कब ओपन होता है, थोड़ा सा मैं स्टोमाटा कब ओपन होता है, ये मैं अगर स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो ये ओपन स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल्स हैं। आप गार्ड सेल्स कैसे हैं, टर्जिड हैं। क्यों टर्जिड हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारा वाटर कंटेंट है।
तभी कोई चीज़ टर्जिड हो जाती है जब उसके पास बहुत सारा वाटर कंटेंट हो, ठीक है। और इसका जो आउटर लेयर है वो थिन लेयर होता है, थिन लेयर, और जो इनर लेयर होता है वो होता है थिक, थिक लेयर। गॉट माई पॉइंट? एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टोमैटल पोर। तो जब स्टोमैटल पोर, TAL, स्टोमैटल पोर ओपन होगा तभी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अच्छा, जो इससे प्रीवियस वीडियो हमने किया था, इससे प्रीवियस टॉपिक हमने ट्रांसपिरेशन किया था, ट्रांसपिरेशन के लिए भी स्टोमैटल ओपनिंग मस्ट है। तो क्या प्लांट अलग से स्टोमाटा ओपन करता है वाटर वेपर छोड़ने के लिए और अलग से स्टोमाटा ओपन करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए? नहीं, स्टोमाटल ओपनिंग जब भी होता है वो इस इंटेंशन से होता है कि देयर विल बी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और उस प्रोसेस में ट्रांसपिरेशन होता है। उस प्रोसेस में जब स्टोमाटा ओपन होता है और प्लांट सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेने की कोशिश करते हैं, देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एट दैट टाइम ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर खुद ही निकल जाते हैं, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं दैट ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम तो गैस लेना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसके साथ साथ हमको वाटर वेपर, जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा तो जो भी वाटर वेपर इंट्रासेलुलर स्पेसेस में कलेक्टेड है उसका निकलना तो होगा ही होगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेना, आपका मतलब मैं प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ट्रांसपिरेशन करना, वाटर वेपर छोड़ना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो भाई वाटर वेपर को जाना पड़ेगा, ऐसी वाली बात हो गई। क्लियर? तो ये गिव रीजंस में आते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दैट ट्रांसपिरेशन occurs along with photosynthesis, ठीक है। ओके, सो आई वॉज वेयर, आई जस्ट गो देयर। ओके, यहाँ पे आते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। अब क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए यहाँ पे दो थियोरीज हैं। विच आर दोज थियोरी? वन इज पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन थियोरी, वन इज शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियोरी। माय डियर किड्स, अब जो पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन थियोरी है ये नई नई अभी आई है, पहले शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियोरी होता था। पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन थियोरी के अनुसार जो हम प्लांट खाना बनाता है तो नेचुरली उसके पास ATP होता है, यस। तो ATP यूटिलाइज करता है और आजू बाजू के सेल्स से वो अपने गार्ड सेल्स में बहुत सारा बहुत सारा पोटेशियम इकट्ठा करता है। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल्स वो क्या करते हैं, गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो खाना बनाते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारा ATP आ गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी है। वो एनर्जी वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पंप इन करने के लिए पोटेशियम आयंस। कहाँ से? तो भाई उनके बाजू वाले सेल्स से, एडजेसेंट सेल्स से वो बहुत सारा पोटेशियम इकट्ठा करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने पोटेशियम इकट्ठा किया, किसने? गार्ड सेल्स ने। जैसे ही गार्ड सेल्स ने बहुत सारा पोटेशियम इकट्ठा किया तो देयर विल बी इंक्रीज पोटेशियम, ठीक है ना। अब पोटेशियम सोल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूट है, ठीक है। तो जैसे ही आपका सोल्यूट बढ़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मतलब गार्ड सेल्स के अंदर बहुत सारा हाइपरटोनिक सिचुएशन आ गई है, तो अब उसको पानी चाहिए, तो अब एंडोस्मोसिस के थ्रू वो एडजेसेंट सेल से बहुत सारा वाटर लेगा, और जैसे ही वाटर आएगा गार्ड सेल्स में, तो मैंने आपको कहा था जैसे ही वाटर आता है गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल्स क्या बन जाते हैं? टर्जिड बन जाते हैं, और उनके जो थिन लाइनिंग ऑफ वॉल है बाहर की तरफ वो फूलने लगती है और अंदर की थिकर वॉल खुलने लगती है, स्टोमाटल पोर खुलने लगता है, स्टोमाटल पोर ओपन्स। तो ये सब सिचुएशन होती है दिन के समय, डे टाइम। Are you getting my point clear? Just 1 second. I'll repeat the whole process again so that you can get it. In daytime, guard cells using chloroplast, they produce ATP.
That ATP is the energy which is utilized to take the potassium ions from the adjacent cells. हाँ ठीक है. अब गार्ड सेल में देर इज इंक्रीज पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन. दैट मीन्स देर इज अ हाइपरटोनिक सिचुएशन बिकॉज ऑफ विच मोर वाटर इज रिक्वायर्ड. मैंने आपको कहा था जब हाइपरटोनिक सेल बन जाता है तो उसको तो वाटर चाहिए. वो नेचुरली एंडोस्मोसिस करेगा, पानी लेगा. देर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. सो मोर वाटर इज ड्रॉन इन टू द सेल. विच सेल? गार्ड सेल. नाउ द गार्ड cells become turgid and the stomatal pore is opened. This happens during the daytime. During night time what happens? ATP बनता नहीं है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, उनके पास एनर्जी नहीं है, पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता नहीं है, तो पानी अंदर आने के चांसेस नहीं होते गार्ड सेल में. इसीलिए गार्ड सेल हो जाता है फ्लैसिड. कब? ड्यूरिंग नाइट टाइम. और वो बंद हो जाता है. लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम वो टर्जिड स्टोमेटल पोर ओपन कर देता है. आई बात समझ में? ओके. दूसरा है हमारा शुगर कॉन्सेंट्रेशन. लेट्स सी शुगर कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलता है. जैसे हमें पता है ऑलरेडी कि जो हमारा प्लांट है वो बनाता है ग्लूकोज, मतलब वो बनाता है शुगर. तो वो उसके गार्ड सेल्स में नेचुरल है कि शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है ना, हाई हो गया. अब शुगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया तो नेचुरली उसको एंडोस्मोसिस, ये भी हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है ना. अब उसको एंडोस्मोसिस पानी लेना पड़ेगा. शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब खुद ही एंडोस्मोसिस होने लगता है, पानी आने लगता है दूसरे सेल्स में से, एडजेसेंट सेल्स में से. इसीलिए उसका स्टोमेटल पोर, जैसा आपको मैंने स्टोमेटल पोर ओपन हो गया. जैसा मैंने आपको पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बताया, सेम है शुगर कॉन्सेंट्रेशन, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है. ये आज के लोग ने न्यू जो भी आने लगे बायोलॉजिकल टर्म्स, तो उन्होंने पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी निकाल दिया. जबकि शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज़ ओके. डे टाइम में खाना बनता है, गार्ड सेल्स में खाना बनता है मतलब ज़्यादा ग्लूकोज बनता है, इसलिए गार्ड सेल्स को ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए उसके जो एडजेसेंट सेल्स हैं वहाँ से एंडोस्मोसिस होने लगता है. गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारा एंडोस्मोसिस होता है तो उसका स्टोमेटल पोर खुल जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करता है. दैट्स सो सिंपल. क्लियर? ओके. तो क्लोजिंग कैसे होता है? चलो ये तो हमने ओपनिंग देख दिया, तो अब क्लोजिंग देखेंगे कि क्लोजिंग कब होगा. अब किसी भी रीज़न से अगर गार्ड सेल्स ने पानी छोड़ना शुरू किया, लीविंग वाटर, किसी भी रीज़न से ना, रात का टाइम है तो खाना कम बन रहा है, वो हाइपोटोनिक बन गया, उसके पास पानी बहुत है, वो दूसरा पानी नहीं लेना चाहता है, ठीक है, किसी भी रीज़न से स्टार्ट लिविंग वाटर मतलब एग्जॉस्मोसिस कर रहा है. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? एग्जॉस्मोसिस कर रहा है तो उसके जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे, देयरबाय क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर, जो बीच का होल है. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? तो ये होता है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस. ओके, I'll stop my video here and my other part of this chapter will be covered in my next video. God bless.